Hello guys, welcome to our channel. In this video, we will discuss about the multi-party computation. Uh, in this video, we will try to learn some basic concept related to the multi-party computation, that is the MPC. So without wasting your time, let's start our video. What is the aim of this video? My aim for this video is to be accessible for a journal reader with some of the material requiring some hopeful but not technical background. I hope that I succeed in this task. My aim of this video is to provide some journal information related to the PMC, whether the reader is not from the technical background. Hope I will success in this task. So let's start our video. There are the some key points of our video. First, in this video, we will discuss about the history of the multi-party computation. Then we will discuss about what is the secure MPC or the MPC. Then later in the video, we will discuss what it can be used for and how the MPC works. Okay, so let's start our video with the history of the MPC. The history of the MPC, it says that the special purpose of the special purpose protocol for specific task started in 1970, and later the secure computation was formally introduced in as the secure two-party computation 2PC in 1982. Means जो स्पेशल पर्पस प्रोटोकॉल था वो स्पेशली फॉर स्पेसिफिक टास्क वो स्टार्ट हुआ 1970 के अंदर, बट लेटर जो सिक्योर कंप्यूटेशन था वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया 2PC के नाम से इन 1982. 2PC is also known as the millennial problem. Okay, what is the millennial problem? The millennial problem is a specific problem which is a boolean predict. मीन जो मिलेनियन जो 2PC था, टू पार्टी कंप्यूटेशन था, उसको नाम दिया गया मिलेनियर प्रॉब्लम. मिलेनियन प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी जो कि बुलियन प्रिडिक्ट थी. ठीक है. Okay, and in generality, for any feasible for any feasible computation, it is introduced in 1986 by एंड्री याओ. जो MPC था वो जनरल वे के अंदर 1986 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया बाय एंड्रियो याओ के थ्रू. ओके. Then over the years, the notation of the general purpose multi-party protocol uh, becomes a fertile area to investigate basic and the general protocol issues properties on. मीन्स जब कुछ टाइम बीता, कुछ साल बीते तो जो मल्टी पार्टी प्रोटोकॉल था वो एक एरिया बन गया था जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे. मीन्स उसके अंदर एमपीसी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे. एंड द जर्नल प्रोटोकॉल इश्यू प्रॉपर्टीज ऑन सच as the universal comparability or the mobile advisory in the proactive secret sharing. जो एमपीसी था उसका यूज सीक्रेट शेयरिंग पर्पस था, उसके लिए भी मोबाइल्स के अंदर किया गया. ठीक है. उसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ एमपीसी थी, हिस्ट्री ऑफ एमपीसी हमने जो पढ़ी उसी के अंदर लेफ्ट पार्ट है. Since 2000 and 2010, the domain of the general purpose protocol has been moved to deal with the efficient improvement of the protocol with practical application in mind. Increasingly, the efficient protocol for MPC have been proposed, and MPC now can be considered as the particular solution to various real life problems, especially ones that only requires the linear sharing of
the secrets and mainly local operation, the shares will not much interactions among the parties. Means since the late 2000 and 2010, 2000 से और 2010 के बीच के अंदर the domain of the general purpose protocol has been moved to deal with efficiency improvement of the protocol with practical application in mind. जो जर्नल पर्पज प्रोटोकॉल था वो एफिशिएंसी मीन्स उसके अंदर उस प्रोटोकॉल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए और वो अप्लाई हुआ विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन माइंड। इनको जो मतलब जब डिस्कवर हुआ था जब ये चेंज हुआ तब ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तरीके से माइंड में रख के इसको कंटिन्यू किया गया। The increasingly efficiency of the protocol for the MPC has been purpose. जो efficiency of protocol थी MPC की वो purpose की गई and MPC now can be considered as a practical solution to the various real life solution. अब जो MPC था वो बहुत सारी real life problems का सॉल्यूशन के तरीके से आया था। मीन्स इसको बहुत सारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन एमपीसी के थ्रू किया गया, स्पेशली वंस दैट ओनली रिक्वायर्स द लीनियर शेयरिंग ऑफ द सीक्रेट। स्पेशल उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो लीनियर शेयरिंग सीक्रेट्स की लीनियर शेयरिंग होती हो एंड मेनली लोकल ऑपरेशन ऑन द शेयर्स विच विल नॉट मच इंटरेक्शन with not much interaction among the parties। जिसका लोकल ऑपरेशंस जिनके शेयर्स के ऊपर जो पार्टीज हैं उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। जस्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग, प्राइवेट बिडिंग एंड ओकेशन, शेयरिंग ऑफ द सिग्नेचर, डिस्क्रिप्टिव फंक्शन एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मीन्स जैसे कि अपने पास हम वोट करते हैं उसका वो हम सिक्योर वे के अंदर करते हैं, उसको हम श्योर नहीं करते किसी को। प्राइवेट बिड कर रहे हैं या फिर हमारे पास ओकेशन हो गया, सिग्नेचर शेयर करना, और मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं या फिर हमारे पास कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसका रिट्राइवल करना। ये हमारे पास इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें एमपीसी मीन्स मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन का इंट्रोड्यूस किया गया था। द फर्स्ट लार्ज स्केल and the practical application of the multi-party computation demonstrated on auction problem took place in Denmark in 2010। पहली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी एमपीसी की जो हमारे पास एक्चुअल ओकेशन प्रॉब्लम के ऊपर बेस थी, उसको डेनमार्क के अंदर 2 जनवरी 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। मीन्स प्रैक्टिकल वे के अंदर जब पहली बार मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2 जनवरी 2008 के अंदर डेनमार्क के अंदर किया गया था। ऑब्वियसली बोथ द थ्योरेटिकल एंड नोटेशन एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड अप्लाइड कंस्ट्रक्शंस आर नीडेड। मीन्स जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे दोनों ही चीज़ें जरूरत पड़ी थी, थ्योरेटिकल नोटेशन की भी, इन्वेस्टिगेशन की भी और कंस्ट्रक्शन की भी। मीन्स ये तीनों काम ही वहाँ पे किए गए थे एमपीसी के। द कंडीशन फॉर मूविंग द एमपीसी इनटू पार्ट ऑफ द डे बाय डे बिजनेस वाज एडवोकेट प्रेजेंट इन। उसके बाद 2008 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद जो एमपीसी का जो बिजनेस था वो डे बाय डे इंक्रीज होने लग गया था। मीन्स जो यूज ऑफ एमपीसी था वो इंक्रीज होने लगा था इन द बिजनेस। मीन्स जो बिजनेस वगैरह थे उनके अंदर। In 2014, a model of the fairness in secure communication in which a adversarial party that averts on the receiving output is forced to pay a mutual predefined monetary penalty has been described for Bitcoin network or for fair lottery। 2014 के अंदर मॉडल एक मॉडल आया था जिसको नाम दिया गया था बिटकॉइन नेटवर्क। बिटकॉइन नेटवर्क के नाम से दिया गया था या फिर उसको में को और वर्ड बोला गया था, वो था लॉटरी, फेयर लॉटरी। ये क्या था? ये जो मॉडल था वो हमारे पास एमपीसी के ऊपर ही बेस्ड था।
ठीक है, मीन्स मल्टी पार्टी कंप्लीकेशन के ऊपर बेस था। इसके अंदर पे ए म्यूचुअल प्री डिफाइंड मॉनेटरी प्लेंटी मीन्स प्लेंटी पे। व्हाट इज द बिटकॉइन? बिट हम एक बार बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन Bitcoin is a cryptocurrency invented in 2008 by an unknown person group of the people named Satoshi Nakamoto. The currency begins to use in 2009। देखो, जो बिटकॉइन थी वो एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका इन्वेंशन 2008 के अंदर हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था कि जनवरी 2008 के अंदर ही एमपीसी को इम्प्लीमेंट किया था। जस्ट उसके बाद ही हमारे पास बिटकॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 के अंदर बाई संतोषी नाकामोटो के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो करेंसी थी ये 2009 के अंदर ही प्रॉपरली यूज में आई थी। व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑन द रिलीज ऑन ए when it is implementation was released on open source software, Bitcoin is a decentralized डिजिटल करेंसी। जब इसको मतलब ओपन सोर्स के अंदर लॉन्च किया गया बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन थी वो एक डिजिटल करेंसी के रूप में प्रोड्यूस की गई थी विदाउट ए सेंट्रल बैंक और ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन दैट कैन बी सेंड टू यूजर from user to user on the peak of the Bitcoin network without needs for any intermediaries। मीन्स कि जो बिटकॉइन थी वो करेंसी थी क्या थी, एक तरीके से पर्सनल शेयरिंग थी। इसके अंदर कोई भी मतलब बैंक का ओनर नहीं था, कोई बैंक नहीं था, कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। हम इसको 1% टू 1% टू सेकेंड पर्सन इसको हम शेयर कर सकते थे। देखो, हमने पहले बताया था एमपीसी, एक मिनट रुको, एमपीसी देखो, एमपीसी स्पेशली वंस फॉर लीनियर शेयरिंग। मीन्स हमने क्या बताया था कि एमपीसी है वो लीनियर शेयरिंग के लिए यूज किया गया था मोस्टली। देखो, स्पेशली वंस दैट रिक्वायर्स द लीनियर शेयरिंग द सीक्रेट ऑफ द मेन लोकली ऑपरेशंस। तो जो बिटकॉइन था, बिटकॉइन भी हमारे पास किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था? जो बिटकॉइन था वो भी हमारे पास लीनियर शेयरिंग के अंदर था, सेंड फ्रॉम यूजर टू यूजर। जो बिटकॉइन एक करेंसी थी, डिजिटल जो करेंसी थी बिटकॉइन, वो भी हमारे पास एमपीसी के ऊपर बेस्ड थी। एमपीसी के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, एमपीसी का यूज़ किया गया था बिटकॉइन को जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे। इसके अंदर हमने पीयर टू पीयर मीन्स मतलब कि लीनियर शेयरिंग हमने की थी। लीनियर शेयरिंग जो नेटवर्क था उसका यूज़ किया था बिटकॉइन के लिए। इसके अंदर किसी भी सेंट्रल बैंक या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या कोई मीडिएटर का जरूरत नहीं थी। द ट्रांजेक्शन आर मेड बाय network verified by the network nodes through the cryptography and recorded in the public distributor uh, ledger called a bitcoin chain। ये जो था बिटकॉइन, इसको हमने मतलब कि क्या किया था, एक डिस्ट्रीब्यूटर, इसको मतलब एक वेरीफाइड वे के थ्रू मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होता था बिटकॉइन का वो एक वेरीफाइड नेटवर्क नोड के द्वारा होता था। ठीक है, थ्रू क्रिप्टोग्राफी, जो कि क्रिप्टोग्राफी के थ्रू था। रिकॉर्डेड इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर था, उसके अंदर इनका जो डाटा वगैरह था वो सेव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, बिटकॉइन आर क्रिएटेड एज रिवाइडेड फॉर द पर्सन नोन एज माइनिंग। ये हमारे पास मतलब कि हमने जो हमारा काम था वो यही था कि बिटकॉइन किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था, वो एमपीसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द सिक्योर एमपीसी और कंपुलेशन या फिर मल्टी पार्टी कंपुलेशन। सिक्योर मल्टी पार्टी कंपुलेशन, एमपीसी, सिक्योर एमपीसी, ये जो तीनों नाम है ये तीनों एक ही है। एमपीसी बोलो चाहे सिक्योर एमपीसी बोलो या फिर सिक्योर मल्टी पार्टी कंपुलेशन बोलो या फिर मल्टी पार्टी कंपुलेशन, ये चारों ही नाम एक हैं, इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो ये होता क्या है?
What is multi-party computation? The setting of the MPC is the one where a uh, number of the distinct computing device wish to carry out a joint computation for some functions while preserving the certain security properties in the face of the adversarial behavior। कि जो MPC है वो हमारे पास बहुत सारे डिवाइस को या पार्टीज को कनेक्ट करके उनका एक जॉइंट कंप्यूटेशन के लिए किया गया था। मीन्स एक जॉइंट कंप्यूटेशन शो करने के लिए किया गया था while preserving the certain security properties in face of the adversarial behavior। जो उनकी जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज हो उनको प्रिजर्व करके, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी concrete consider a group of the friends all working in the same industry। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप एक कंसिडर ए ग्रुप मीन्स एक ग्रुप करो, ऑल आर वर्क, कुछ एक दोस्तों का ग्रुप सपोज कर लो जो सभी के सभी एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। who wish to compute the basic salary on their बेसिक स्ट्रेटेजीज ऑन देयर सैलरी। मीन्स वो अपनी सैलरी का एक स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहते हैं। दे मे विश टू नो द एवरेज सैलरी फॉर दोज विद 0 to 2 year एक्सपीरियंस, 3 to 5 year एक्सपीरियंस एंड ग्रेटर देन 5 year एक्सपीरियंस। मीन्स उन वो एक डाटा बनाना चाहते हैं एवरेज सैलरीज का फॉर 0 to 2 year एक्सपीरियंस। मीन्स कि एक एम्प्लॉय है उस ग्रुप के अंदर जिसकी 0 से 2 year एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी कितनी होगी। 3 से 5 year एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉय है उसकी एवरेज सैलरी कितनी होगी, और ग्रेटर देन 5 year एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी। दिस वुड अनेबल देम टू अंडरस्टैंड इफ दे आर बीइंग underpaid in general whenever they are not skilled। Don't worry, no one think that they are overpaid। Okay, the aim of the until now, in order to carry out such a computation, they would have to provide this information to a trusted third party who would receive their idea of the who receive the information and compute the statistics and send them back the results। मीन्स जब उनको ये डाटा निकलवाना है, मीन्स एवरेज सैलरी का जो डाटा निकलवाना है, एवरेज सैलरी का स्टैटिस्टिक्स निकलवानी है, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो ये डाटा है उनके सैलरी का वो किसी भी एक थर्ड पार्टी होगी उसको उनको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी उनकी स्टैटिक्स को चेक करेंगे, मीन्स किस हिसाब से उनको सैलरी दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो एक रिजल्ट बना के उनको सेंड कर देंगे। द बेसिक आइडिया ऑफ द एपीसी इज to enable a set of the parties to carry out such a computation without by without any trusted party। uh, we can call such a process an MPC protocol। मीन्स हमें पता है कि जो एक मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्टीज हैं वो ट्रस्टेड नहीं है। हम मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं वो ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन जो एमपीसी है वो हमारे पास एक ट्रस्टेड पार्टी का काम करता है। मीन्स एक ट्रस्टेड पार्टी का काम करता है, तो हम क्या करेंगे, उस डाटा को हम एमपीसी को देंगे। द बेसिक आइडिया ऑफ द एमपीसी इज टू enable a set of the parties to carry out such an computation without any trusted party because usually no such no such trusted party exists। क्योंकि जो इस तक no such trusted party exists।
बिकॉज सामान्यतः क्योंकि जो जितनी भी जो पार्टीज होती हैं वो ट्रस्टेड नहीं होती हैं, अनट्रस्टेड होती हैं। वी कैन कॉल सच ए प्रोसेस एज एन एमपीसी प्रोटोकॉल। ये हम एक जो इस टाइप की जो प्रोसेस है उसको हम एमपीसी प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एमपीसी कंसिडर एन एडवर्सल सेटिंग where some of the parties ट्राई टू अटैक द प्रोटोकॉल। ये जो एमपीसी जो हम बनाएंगे उसके ऊपर जो आउटसाइड की जो पार्टीज है वो ट्राई करती हैं अटैक द प्रोटोकॉल। द एम ऑफ द सच एन अटैक मे बी टू लर्न द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। की जो इस टाइप का जो अटैक होता है, जो अटैक किया जाता है उसका जो रीजन होता है वो मे बी टू लर्न द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड करना होता है। दैट इज द एग्जांपल द सैलरी ऑफ द सम ऑफ द पार्टिसिपेंट मीन्स कि जो सैलरी है पार्टिसिपेंट्स की उनको जानना, ये उनका एक पर्पज हो सकता है अटैक करने का, उन डाटा को लीक करने का। और टू कोज द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन टू बी incorrect, that is the average salary is some specific value so that they can offer someone in the group a job, have them think that their offer is good। जो इसका रिजल्ट होता है मीन्स जो डाटा लीक होने का वो रिजल्ट ये हो सकता है कि वो एवरेज सैलरी के किसी भी पर्सन को लें उस ग्रुप में से और उनको ज़्यादा सैलरी देकर और उनको मतलब अपनी जॉब पे रख ले। हैव देम थिंक दैट देयर ऑफर इज गुड। As such, two of the most basic security requirements for MPC protocol are privacy and correctness। जो MPC की जो सबसे most requirement होती है वो होती है प्राइवेसी और करेक्टनेस। मीन्स जो एमपीसी है वो जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है वो करता है प्राइवेसी और अपने पास प्राइवेसी और करेक्टनेस के ऊपर। द मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी हो गया ये तो। द प्राइवेसी requirement states that nothing should be learned beyond this beyond what is absolutely necessary। E more exactly, parties should learn the destination and output and nothing else। Correctness requires requirement statements that each party should receive the correct output। कि करेक्टनेस का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो पार्टीज है जो रिजल्ट हम वो देंगे एमपीसी के थ्रू वो करेक्ट हो, जो करेक्ट रिजल्ट है वो रिसीव करें। और प्राइवेसी का मतलब ये है कि उनका जो डाटा है वो लीक ना हो, वो किसी भी थर्ड पार्टी के पास ना जाए, इसके मतलब जिसका रिजल्ट्स है वो कुछ गलत हो। Therefore, the adversary must not be able to cause the result of the computation uh, on the computation to be different from the function that the parties had set out to compute। Secure multi-party computation can be used to solve the variety of the problems, enabling utilizing the uh, of the data without compromising the privacy। जो सिक्योर मल्टी पार्टी कंपटीशन है उसका जो यूज़ होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है विदाउट कंप्रेसिंग प्राइवेसी। मीन्स जो प्राइवेसी है उसको रिवील किए बिना। To take another example, let us consider the problem of comparing a person's DNA against a database of the cancer patient। हम एक और एग्जांपल लेके हम एमपीसी की बारे में डिस्कस करते हैं। Okay, so let's take another example. Let's consider a problem of comparing a person's DNA against a database of the cancer patient DNA with the goal to finding if the person is in the high risk group for a certain type of the cancer। मीन्स हम जो ये एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक
consider the problem of the comparing the person's DNA against the database of the cancer DNA। हम एक database लेंगे, एक तो है वो हमारे पास होगा सिंपल जो पर्सन होता है, जो डीएनए पर्सन्स डीएनए कंपेयरिंग विद द कैंसर पेशेंट डीएनए, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे विद द गोल ऑफ फाइंडिंग इफ द पर्सन इज इन द हायर रिस्क ग्रुप ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ द पर्सन। कि जो हमारा गोल रहेगा वो ये रहेगा कि हम फाइंड करेंगे पीपल्स का जो हाई रिस्क ग्रुप में है किसी भी टाइप की कैंसर के अंदर। सच ए टास्क क्लियरली हैज ए इम्पोर्टेंट हेल्थ एंड द सोशल बेनिफिट। इसका जो ये टास्क है इसका अपना एक इम्पोर्टेंट हेल्थ एंड सोशल बेनिफिट है। हाउएवर ए पर्सन्स डीएनए इज वेरी सेंसिटिव, डीएनए है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है एंड शुड नॉट बी रिवील्ड टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रिवील नहीं किया जा सकता है। This dilemma can be is solved by running a secure multi-party computation protocol। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जा सकती है एक सिक्योर मल्टीपार्टी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू that reveals only the category of the cancer that person's DNA close to। मीन्स जो ये एमपीसी होगा सिक्योर मल्टीपार्टी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा, ये सिर्फ रिवील करेगा क्या, एक तो कि पर्सन है वो कौन सी कैंसर के मीन्स उसका जो डीएनए है वो कौन सी कैंसर के क्लोज या फिर मीन्स उसके सिम्टम्स उसके अंदर मिलते हैं। इन दिस एग्जांपल द प्राइवेसी रिक्वायरमेंट इंश्योर दैट ओनली द कैटेगरी ऑफ द कैंसर इज रिवील्ड। मीन्स कि जो ये एमपीसी है इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ खाली मीन्स उस टाइप ऑफ कैंसर को ही उस कैटेगरी को ही रिवील किया जाएगा और एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी रिवील नहीं किया जाएगा लाइक उसका डीएनए है उसका ब्लड ग्रुप है, ये इस टाइप की चीज़ें नहीं की जाएंगी। बस उसका यही किया जाएगा कि जो इस जैसे कि हम एक मान के चल रहे हैं एक पर्सन है उसका जो कैंसर है वो डीएनए है वो लाइक करता है ब्लड कैंसर के पास, मीन्स उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं उसके डीएनए के अंदर वो ब्लड कैंसर के पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस वो खाली ये रिवील करेगा कि इसका जो डीएनए है वो क्लोज टू ब्लड कैंसर है। ठीक है, इन दिस एग्जांपल द प्राइवेसी रिक्वायरमेंट इंश्योर दैट ओनली द कैटेगरी ऑफ द कैंसर इज रिवील्ड। मीन्स खाली उसकी कैटेगरी को रिवील किया जाएगा, उसके डीएनए वगैरह को रिवील नहीं किया जाएगा एंड नथिंग एल्स अबाउट द एनीवन्स डीएनए, और उसके डीएनए को रिवील नहीं किया जाएगा। नाइदर द डीएनए ऑफ ए पर्सन चेक्ड नॉट द डीएनए ऑफ द पेशेंट इज इन दिस वीडियो। मीन्स उसका जो डीएनए है वो उसको चेक नहीं किया जाएगा और ना ही किसी पेशेंट के डीएनए को चेक किया जाएगा। Furthermore, the correctness requirements guarantees that Malcy's party Malcy's party cannot change the result। He guarantee that the malicious party cannot change the result। For example, make the person that is the uh, person thinks that they are at risk of a type of the cancer and therefore need screening। मीन्स वो सिर्फ यही चीज़ रिवील करेगा कि जो पर्सन हाई पेशेंट है या फिर उसको रिक्वायरमेंट है इलाज की, तो उसको बस ये स्क्रीन करके दिखा देगा कि इसको इस टाइप की एक कैंसर है, इसको रिक्वायरमेंट है मीन्स किसकी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है मीन्स हॉस्पिटल वगैरह के लिए डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करने के लिए। Let's conclude it with an example now how it is possible to compute the information without revealing it। कि हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि इसको बिना जो डाटा है उसको शेयर किए बिना हम ये जो प्रॉब्लम में कैसे मीन्स ये जो वैल्यूज है हम कैसे निकाल सकते हैं। कंसिडर ए सेट ऑफ द पीपल हु विश टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ देयर सैलरी। कि जो पर्सनस हैं वो अपनी एवरेज सैलरी को
निकालना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल के अंदर बताया था, हम वही एग्जांपल इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। विदाउट रिवीलिंग एनीवन टू देयर पर्सनल सैलरी, इफ यू वांट टू चैलेंज, spend a few minutes, think about how to do this before continuing. Now the solution can be number of the parties of from the first to last, any arbitrary order. Means consider a set of the people who wish to compute their average salary. मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को करो जो अपनी एवरेज सैलरी निकालना चाहता है, बट विदाउट रिवीलिंग इट्स सैलरी टू एनीवन, मतलब कि वो अपनी सैलरी को रिवील नहीं करना चाहते, फिर भी वो अपनी एवरेज सैलरी निकालना चाहते हैं। अगर वो अपनी सैलरी रिवील करेंगे तो हम अपनी जो स्टैटिस्टिक्स होता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैथ, स्टैटिस्टिक्स इन मैथ, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी सैलरी को रिवील करना नहीं चाहते। इफ यू वांट टू चैलेंज, spend a few minutes and thinking about how to do this before continuing. अभी आप कुछ समय के लिए इस चीज को सोचो कि हम इस चीज को करेंगे कैसे। देन नाउ द सॉल्यूशन, we can we can number of parties from first to last in any arbitrary। मीन्स जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि हम बहुत सारी एक नंबर ऑफ पार्टीज मान लेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन एनी आर्बिट्ररी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर के अंदर। देन द फर्स्ट पार्टी चूज ए वेरी लार्ज रैंडम नंबर, जो पहली पार्टी होगी वो बहुत बड़े नंबर को लाइक करेगी एंड एड देयर सैलरी टू द नंबर एंड फॉरवर्ड द रिजल्ट टू द सेकंड पार्टी। मीन्स वो पहली पार्टी है वो अपनी सैलरी के अंदर एक बहुत बड़े नंबर ऐड करेगी और वो फॉरवर्ड कर देगी किसी दूसरी पार्टी मीन्स सेकंड पार्टी को। ओके, the second party adds their salary to the value they receive and forward the result to the third party। और जो सेकंड पार्टी होगी वो क्या करेगी, उसके अंदर कुछ ऐड करेगी और वो फॉरवर्ड कर देगी थर्ड को, एंड सो ऑन टू द एंड, और ये लास्ट तक चलता ही रहेगा। द लास्ट पार्टी adds their salary and spend the final result to the first party। और जो लास्ट पार्टी है वो क्या करेगी, वो अपनी सैलरी ऐड करेगी। जैसे कि हमने एन माने तो पहली दूसरे को देगी, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, चौथी पांचवे को, और पांचवी ऐसे करते करते एन टाइम्स आएगा। और जो एनएथ पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो अपनी सैलरी ऐड करेगी और फर्स्ट वाली पार्टी को फॉरवर्ड कर देगी एंड फाइनल रिजल्ट टू द फर्स्ट पार्टी। फाइनली द फर्स्ट party subtract the original large random number and divides the result by the number of the parties। मीन्स देखो हमने क्या किया, हमने एक नंबर माना, जैसे कि हमने x माना, उसके बाद हमने a को दिया, उसने क्या किया x प्लस a कर दिया, फिर b को दिया तो x प्लस उसने भी b कर दिया, फिर उसके बाद c को दिया उसने x प्लस सी कर दिया। ऐसे करते ए बी सी डी ऐसे करते चला जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जो हमने इनिशियल वैल्यू मानी थी उसको फाइनल वैल्यू मीन्स जो फाइनल हमारे पास आया था उसके अंदर से डिटेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो उनका डिफरेंस बचा मीन्स क्या बचा, हमारे पास लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस बचा, उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म से। This is the average since it is just the sum of the all salaries divided by the number of the parties। ये क्या था, ये हमारे पास sum of the all जितनी भी वो थी उनका all parties थी उनका sum था और उनका डिवीजन था, डिवाइड था with respect to the total number of the parties। This is the average जो कि हमारे पास average होगा। Since it is the just in order, since this is the error, since it is the just the sum of the salaries divided to the number of the parties। मीन्स ये हमारे पास एवरेज था, सम प्लस टोटल सम प्लस में नंबर ऑफ पार्टीज। इन ऑर्डर टू see this preserve policy, note that the large random number chosen by the first party hides its own salary and all intermediate sum of the salary। Means as long as it large enough, thus no individual party seems anything but a large random number। कोई भी जो इंडिविजुअल पार्टी है नहीं देखती एनीथिंग बट ए लार्ज नंबर, मीन्स जो लार्ज रैंडम नंबर था उसको छोड़कर। फाइनली द फर्स्ट पार्टी रिसीव द सम ऑफ द सैलरीज
but this is actual equivalent to the average salary. Given the average multiplying by the number of the parties gives the sum of the all salaries. जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा किसके एवरेज सैलरीज के the given average given the average multiplying by the number of the parties given the sum of the all say salaries मीन्स कि हम क्या करेंगे जो एवरेज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पार्टीज से तो उसके बाद हमारे पास सम ऑफ ऑल सैलरी आ जाएगा दस द रिवील नथिंग मोर देन द एवरेज मीन्स हमारे पास अभी तक हमने क्या रिवील किया सिर्फ खाली एक एवरेज रिवील किया है द रिजल्ट इज that not party learned anything about anyone's salary तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ कि कोई भी पार्टी है उसको एक्चुअल सैलरी के बारे में नहीं पता चला बट दे स्टिल आर एबल टू लर्न देयर एवरेज लेकिन फिर भी वो अपनी एक सैलरी को जो एवरेज सैलरी हुई उसको वो उनको मिल गई जो उनको रिजल्ट चाहिए था वो उनको मिल गया मैजिक एक्चुअली आई हेट कॉलिंग इट मैजिक इट्स जस्ट अ साइंस मीन्स ये मैजिक नहीं है ये बस एक खाली एक साइंस है मीन्स एक तरीके से हम बोले तो ये साइंस ही है ठीक है हम इसको मैजिक नहीं बोल सकते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया फिर भी हमारे पास एवरेज आ गया अब नेक्स्ट हमारे पास आता है याओ बेस्ड प्रोटोकॉल तो ये याओ बेस्ड प्रोटोकॉल होता क्या है वन ऑफ द मेन इश्यू when you are working with a yao based protocol this is the uh, function to be securely evaluated which could be arbitrary program must be represented as a circuit usually consisting of the XOR and the AND gate means जो main issue होता है working with YAO based protocol is that the function of the secret evaluated which cannot be any arbitrary program must be जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो एक सर्किट के रूप में किया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ द एक्सऑर जो गेट्स होते हैं एंड गेट हो गया नोर गेट हो गया इसका यूज करके हम इनको बनाते हैं सिंस मोस्ट रिवेल्ड प्रोग्राम्स consisting loops complex datas this is highly non trivial task कि जो मोस्ट ऑफ द डाटा है वो हमारे पास वो करता है क्या बोलते हैं लूप्स का यूज किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है दिस इज ए हाईली नॉन ट्राइवल टास्क जो हमारे पास एक हाईली नॉन ट्राइवल टास्क है ठीक है द फेयर प्ले सिस्टम वाज फर्स्ट टूल डिजाइन टू टैकल दिस प्रोग्राम जो फेयर प्ले जो सिस्टम था वो हमारे पास पहला ऐसा टूल था जो याओ बेस प्रोटोकॉल के ऊपर किया गया था वाज द फर्स्ट टूल डिजाइन टू टैकल दिस प्रॉब्लम वो हमारे पास इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया गया था द फेयर प्ले कंसिस्ट ऑफ द टू मेन हाई लेवल लैंग्वेजेस and the output these program in the boolean circuit representation जो हमारे पास फेयर प्ले था वो हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था साथ के अंदर जो रिजल्ट था जब इनको कंपाइल करते थे जो इनका रिजल्ट था वो हमारे पास किसके अंदर आता था एज ए उसके अंदर आता था मीन्स उसका गेट्स का यूज करके हम इसका जो रिजल्ट था उनको बुलियन सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करते थे इसका मतलब जो रिजल्ट्स हम निकालते थे वो बुलियन के अंदर आता था द सेकंड कंपोनेंट can be garbled on the circuit and executed on a protocol to securely evaluate the garbled circuit uh, as well as two parties competition based on the YAO protocols. Fair play can also carry out multiple party protocols. This is done using the BMR protocol. ओके मीन जो इसका जो यूज़ किया जो बीएमआर प्रोटोकॉल था सॉरी जो फेयर प्ले प्रोटोकॉल था वो यूज़ किया गया था वो खाली सिर्फ टू पार्टीज के लिए था लेकिन जो दो से ज़्यादा के लिए था वो हमने यूज़ किया था बीएमआर प्रोटोकॉल मीन्स this can be you the fair play can also carry out the multi-party protocol this is only done
when the BMR प्रोटोकॉल मीन्स जब BMR प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तभी हमारे पास याओ बेस्ड प्रोटोकॉल मल्टी पार्टी प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है विच इज द एक्सटेंडेड याओ पैसिवली इज सिक्योर प्रोटोकॉल टू एक्टिव केस। जो BMR प्रोटोकॉल है ये हमारे पास याओ बेस्ड प्रोटोकॉल का ही एक क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा सा BMR प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेते हैं।